Welcome children. Today I am going to discuss about the integers. Before this video I have discussed about integers. Three types of integers: positive integers, zero integer, negative integers. We have to learn the properties of positive integer. You know, positive integer are also called natural numbers, which starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. I have taught you many operations on positive integers, just like addition of positive integer, subtraction of positive integer, multiplication of positive integer, division of positive integers, SCF of 2 or more than 2 positive integers, LCM of 2 or more than 2 positive integers, simplifications, exponents. All these are known as mathematical operations. But we have to learn mainly two properties of positive integers. First is Euclid division lemma, and second, fundamental theorem of arithmetic. So first of all, we will discuss about Euclid division lemma. You have known about divisions in earlier class, 3 class, 4 class, 5 class. You have learned about the divisions on positive integer. If 4 is divided by 2, 4 is divided by 2, here 4 is positive integer and 2 is also positive integer. So 4 is divided by 2, then the quotient is 2 to the 4. Here we write 2 and here write down 4. So here remainder is 0. It is clear. Now 5 is divided by 2. Here 5 is dividend, 2 is divided, then the quotient is what? 2 to the 4. So here we write in quotient 2. And here 4, then remainder is equal to 1. Now here 7 is divided by 5. The 7 1 5 5, and here write 5, then remainder is equal to 2. Similarly, we can find here a positive integer is divided by another positive integer, then we get two unique numbers. जो क्वेश्चन में आपका 2 है वो अकेला नंबर होगा, यूनिक. ऐसा है कि 4 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन अकेला ही आएगा 2. ऐसा नहीं कि अभी हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन 2 आएगा, आफ्टर 2 आवर्स क्वेश्चन इसका चेंज कर जाएगा. ऐसा नहीं. जब भी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको सिंगल ही यूनिक ही आएगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर आल्सो विल बी ओनली 0. सो रिमाइंडर इज आल्सो यूनिक एंड क्वेश्चन इज आल्सो यूनिक. चिल्ड्रंस, केयरफुली लिसन व्हाट आई स्पीक. इट इज वेरी नेसेसरी टू लिसन केयरफुली. Here 5 is divided by 2, then the quotient is here 2 and remainder is equal to 1. If we will observe the remainders, then we can say that remainders are whole number. It means non-negative integer. Here 0, 1, 2. Similarly, we get what? 3, 4, 5, 6, 7. So all these are remainders are known as what? Whole numbers. Now when we will think about the quotient also what? Whole number.
non-negative integer. Here 3 is divided by 4. So 3 is dividend and 4 is divided. Then the in quotient is what? 0. So here we write 0. Then the remainder is 3. So here in quotient 0. Similarly, we obtain what? 1, 2, 3, 4, 5. So we can say that when a positive integer is divided by another positive integer, then the living remainder is whole number which is unique, and also the quotient is unique which is whole number or non-negative integer. It is the statement जो यूक्लिड के द्वारा दिया गया। और ये डिवीजन का प्रोसेस कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, 3, 4, 5, 6 लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। सो हियर वी राइट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग रिमाइंडर के बारे में सोचते हैं तो आप क्या कहोगे कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, कंडीशन है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉजिटिव इंटीजर, उस केस में बोल रहे हैं कि आपका रिमाइंडर या तो 0 नहीं तो 0 से ग्रेटर होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा रिमाइंडर। और ये भी ध्यान रखना होता है कि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। आप चेक करके देख लो ये। तो अगर ऐसा करें हम लोग इसको, जो A is dividend and B is divider, then here what? Q in quotient and remainder is R. So here clearly according to dividend is equal to divider into quotient plus remainder, A is equal to BQ plus R, where R is what? Equal to 0 or more than 0 but less than the divisor. So R equal to 0 and greater than 0 but less than the divisor. लेकिन ये कंडीशन कब है? कब? जब आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो जो आती है कोशिएंट वो भी यूनिक होती है होल नंबर्स, और रिमाइंडर भी जो आती है वो भी क्या होती है? यूनिक होल नंबर्स। इस प्रकार ये आपको कंसेप्ट आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये जो आपका कंसेप्ट है यहां पर, इस कंसेप्ट को, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लेमा। लेमा क्या होगा? लेमा इट इज अ स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट। उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इट इज बेसिक फैक्ट। ये तो बिल्कुल बेसिक फैक्ट है जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करते हैं हम लोग अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। सो लेमा इज इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statements. So it is known as क्या हुआ statements? बोलो तो, when a positive integer is divided by the another positive integer, then we get two unique whole numbers which are satisfying as dividend is equal to divider into quotient plus remainder, where remainder equal to 0 or more than 0 but less than the divisor. A quotient is what? Quotient is also whole numbers or non-negative integers. Similarly, now अब यहां पर है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप इस स्टेटमेंट को ले लेते हो लेमा के रूप में। एज यू लर्न आप सीख सकते हो, आप चले जाओ मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री में है, वहां पर आपको एक्सियोम्स वो क्या है, यूक्लिड के द्वारा ही जितना ज्योमेट्रिकल सेट था उसकी प्रॉपर्टी को यूक्लिड ही सिस्टमेटाइज किया, अरेंज किया, वहां भी नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री
है ना यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स बहुत ज्यादा ही ऑपरेशंस किए हैं मैथमेटिक्स में, इसलिए जो डिवीजन का है वो प्रोसेस वो कहता है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्लियर हो गया बच्चे कि ये स्टेटमेंट्स a इक्वल टू व्हाट dq प्लस r वेयर r इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन द डिवाइजर। आपको देखना पड़ेगा कि जब रिमाइंडर हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चे, यहां पर हम बता रहे हैं इसके तो लेमा हो गया, और जो आप यहां पर जो डिवीजन का प्रोसेस किए हो, जो स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। आप जैसे चाय बनाते हो, चाय बनाने का भी कई स्टेप्स है ना, उससे एक आप ये है, आप कैसे चाय बनाना है तो आप क्या करोगे, के बाद सारा चीज मिक्स कर दोगे। क्या चीज मिक्स करोगे? आपको चाहिए कंटेनर, आपको चाहिए शुगर, आपको चाहिए वाटर, आपको चाहिए चाय पत्ती। उसका स्टेप बाय स्टेप वर्क है। मुझे नहीं चाय बनानी आती है, लेकिन उसका तो स्टेप होगा ना कि पहले किसको गर्म करेंगे, तब फिर किसको डालेंगे, इस प्रकार तो प्रोसेस होगा, कई स्टेप होगा। उस सारे स्टेप्स को एक साथ हम लोग एक सीरीज में आता है। सीरीज इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में यही काम होगा, सेकेंड स्टेप में यही काम होगा, थर्ड स्टेप में यही काम होगा, इसलिए उससे आ जाती है ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, और जिसका यूज करते हैं हम लोग क्या करने में, उससे एक प्रोसीड्यूर आती है जिससे किसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे चाय बनाने का एक प्रोसेस होगा, एक स्टेप्स होगा, प्रोसीड्यूर होगा, उसमें कई स्टेप्स होंगे जो कहलाएगा सीरीज, क्योंकि उसमें ऑर्डर होगा कि पहले यही काम करना होगा आपको। नहीं, वाटर को उबालना होगा, तब उसके बाद हो सकता है कि मुझे नहीं पता है उसमें मिल्क डालना होगा, उसको उबालना होगा, तब शुगर डालना होगा। इस प्रकार से उससे एक स्टेप आती है, जिस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। सो हियर क्लियर, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम अ सीरीज ऑफ, सीरीज ऐसे ली जाती है, सीरीज का मतलब सिस्टमटाइज हुआ, अरेंज हुआ, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which is used to solve particular problems, इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, नहीं, which is used to solve particular problem, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। हालांकि इससे एक आ जाता है प्रोसीड्यूर, जिस प्रोसीड्यूर का यूज करते हैं हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। इस प्रकार चिल्ड्रंस आप अपने मेमोरी में रखोगे क्या कि व्हेन ये जो हम बताए हैं डिवीजन लेमा, वो ओनली बताए हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये तो और भी है इंटीजर के लिए, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि आप जब एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो आएगा दो यूनिक होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसका रिलेशन होगा a इक्वल टू dq प्लस r, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन द डिवाइडर। इट इज नॉट एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको इसके आगे का प्रोसेस होगा। फिर I will see you again after this video.